Lord and welcome to another Sunday service with Father's Care Online. We hope that you've come prepared for the word, for the worship, and for the praise. Before we get into it, let's say the Lord's Prayer together. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Amen. Now I hope you're prepared because we're going to get into some praise and worship with the Father's Care music team. Praise the Lord, church. Welcome to Sunday Praise and Worship. We are so excited right now to lift His praise unto Him together as a church family. So come on, let's do it together as one family. In Jesus' name. I love this declaration in this song, that above everything that's happening, our God is greater. Amen. Well, let's sing. Water you turn into wine. Open
that our God is greater, He's our Savior, He's our healer, and there's nothing or no situation that's bigger than Him. Oh Lord, right now, we're just tapping into your presence. Thanking you that we're fearfully and wonderfully created. All works of your hands. Designs of the great designer and beautiful creations filled with purpose. All created by you, God. And Lord, we're just looking to you right now in this moment. Looking just to worship you and put our worries behind us. Just looking to the Father right now. You're worthy, Lord, you're worthy. जो मुझको चुराता तू है वो जो मुझको सुपाता देखता हूँ मैं जब तेरी क्रूस की ओर तू है वो जो मुझको बचाता मैं आजाद You right now that we've been bought at a price, and it was at the cross that you showed us the greatest demonstration of love. It was at the cross that you made a way for us and helped us overcome everything. Just lift our praises and worship to you right now. Thank you, Jesus. And I know
my eyes, and you stand before me, and I know you love me, and I know you love. We sing out, you love me. Ooh, you love me, God. No matter where I fail, you love me. You love me, God. Come on, let's keep that going. He loves you. He wants you to know that He still loves you. No matter what kind of week you've had, no matter where your head's been, He's telling you, I still love you. You're my beautiful creation. You're my beautiful child. And my love never changes for you. So if you need to hear that today, that He still loves you, I'm here to tell you that He still loves you. Come on, we're going to raise it up and just declare it. I know you love me. You love me. I know you. One more time, one more time. I know you love me. And at the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? It is done. It is done. At the cross it was done. Every sickness, every disease, every curse, it was defeated and overcome at the cross. The cross of Calvary. Oh, we worship you, Jesus. Just continue to worship Him. Continue to fill the atmosphere with your sound. Oh, we worship you, Lord. Hey church, we hope you are staying safe and staying connected with one another. Even though we are not able to gather together in person right now, we want to encourage you to connect with us through our different avenues. If you have any prayer requests or in need of a person to talk to, simply contact us using the details on the screen to get in touch. Every Sunday night at 6 p.m, we are meeting on Zoom to take Holy Communion together as one family, as well as fellowship with one another. We definitely encourage you to join us online, ready to worship, pray, and fellowship with one another. We encourage you to continue your generosity and giving what belongs to the Lord. On the screen are our online account details which you can use to tithe. Now, let's prepare our hearts for the word and what the Lord has in store for us today. प्रभु की जय। सबको स्वागत करते हैं हम आज जहाँ से भी आप जुड़ते हो। हम इतना जानते हैं कि परमेश्वर की आशीष आप पर बहुतायत से रहेगा, क्योंकि आप जो समय को निकाल कर और परमेश्वर के पवित्र और बहुमूल्य वचन को सुनते हो। आज का जो प्रचार है वो है हिब्रूज चैप्टर 11 और वर्स 1 को मैं पढ़ता हूँ, और उसमें मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ। उसमें इस प्रकार लिखा है, Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. और हिंदी में इस प्रकार कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बाइबल कहता है
कि परमेश्वर के जो लोग हैं, बाइबल कहता है उन विश्वासियों के बारे में आज जो प्रभु यीशु को जानता है, जो व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से रिश्ता रखा है, इस तरह के व्यक्ति के जो मंजिल है वो कैसा होता है। एक आशीष भरा इंसान, एक आशीष भरा घराना या एक आशीष भरा संस्था, उसका जो मंजिल है वो कैसा होता है। बाइबल कहता है that faith is the substance of things hoped for। हर एक इंसान, हर एक घर, हर एक घराना, हर एक संस्था, हर एक समाज के बहुत आशाएं होते हैं। They have many hopes in many things। उसी प्रकार जिस प्रकार आप एक आशा रखते हो किसी चीज पर, या आप एक होप है कि हम कुछ हासिल करेंगे जीवन में, और आप एक विश्वासी हैं, उस आशा को, उस होप को आप कैसे प्राप्त करते हो। बाइबल हमें दिखलाता है कि विश्वास जो है, फेथ होना जरूरी है हर एक इंसान को। बाइबल यह भी कहता है कि बिना विश्वास के तुम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हो। पहला तो यह है कि तुम्हारे अंदर में वो विश्वास होना चाहिए, और जिस चीज के तुम आशा करते हो, जो तुम पाना चाहते हो, जहां तुम पहुंचना चाहते हो, उसके लिए विश्वास निहायत जरूरी है। लेकिन उस विश्वास को हम कैसे बढ़ाएं? बाइबल सेज जो कुछ भी तुम आशा करते हो, जिस चीज को तुम एक होप में है आज, उसको तुम पाना चाहते हो, चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो आपके लिए आपके घर हो, चाहे वो आप अपने बच्चों के लिए एक भविष्य देखा है, जो भी तुम्हारा आज होप है, यह विश्वास लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि विश्वास ही एक वस्तु है जो तुम्हें तुम्हारा मंजिल तक पहुंचा सकता है। सिर्फ और सिर्फ विश्वास ही एक वस्तु है। तो मैं उसको इस प्रकार देखता हूं, जितना ज्यादा तुम्हारा विश्वास है, उतना ज्यादा तुम मंजिल के करीब पहुंचते हो। तो ये विश्वास आता कैसे? कैसे हम बढ़ाएं इस विश्वास को? ये विश्वास मिलता कहां है? बाइबल कहता है रोमन्स 10:17 में, फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। विश्वास प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनने से तुम्हारा विश्वास बढ़ता है, और उस विश्वास के द्वारा तुम अपने मंजिल तक पहुंचते हो। जो भी तुम्हारे आशा है जिस चीज पर, उन आशाओं को तुम हासिल करते हो विश्वास के द्वारा, और विश्वास प्रभु यीशु का वचन सुनने से आता है। बाइबल कहता है कि साम्स में हम देखते हैं, साम चैप्टर 1 वर्स 2 में, कि दाऊद राजा का जो डिलाइट था, उसका जो दिल के जो अरमान था, वो था कि his delight is in the law of the Lord and in his law he meditates day and night। कि परमेश्वर के वचन में दाऊद राजा दिन और रात मनन करता था। He was meditating on the word of God। He was eating like food every word that he was learning from the Bible।
धर्मशास्त्र से बाइबल कहता है कि परमेश्वर के वचन जैसे भोजन हम लेते उस प्रकार, जैसे हम भोजन लेते उस प्रकार परमेश्वर के वचन में रात और दिन वो मनन करता था। किसी भी चीज को तुम हासिल करने के लिए तुम्हारा विश्वास बढ़ना जरूरी है, और विश्वास बढ़ाने के लिए तुम्हें परमेश्वर के वचन को जैसे भोजन तुम लेते हो उस प्रकार रात और दिन उसमें तुम मनन करते हो। और वो करने से बाइबल कहता है कि तुम्हारा जो विश्वास है वो बढ़ता है। वो आशा जो है, जिस चीज के तुम्हारा होप्स है, आशाएं है, वो तुम्हारे करीब आना तुम्हें दिखता है, क्योंकि तुम परमेश्वर के वचन को सुनते हो। बाइबल कहता है हिब्रूज 4:12 में, द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग एंड पावरफुल एंड शार्पर देन डबल एजेड स्वॉर्ड। बाइबल कहता है piercing even to the division of soul and spirit। तुम जानते हो प्यारे भाई और बहन, परमेश्वर के जो वचन है उसको तुम कैद नहीं कर सकता, उसे तुम किसी जगह पर बंद नहीं कर सकते हो, क्योंकि बाइबल कहता है कि प्रभु का वचन जो है वो जीवित है और प्रबल है और दो धार तलवार है से भी ज्यादा चोक है। यानी कि परमेश्वर के जो पवित्र और बहुमूल्य वचन है, उस वचन को तुम अपने जुबान से दूसरों तक पहुंचा सकते हो। दुनिया के हर एक कोने कोने में तुम परमेश्वर के पवित्र वचन को भेज सकते हो। माना कि तुम्हारे बीच में कोई ऐसा है जो बीमार है और दूर है तुमसे, खास करके ये समय जो है पेंडेमिक है, इस समय हम आ जा नहीं सकते, बहुत से बंधुआई है, रुकावट है, कानून है, laws in place that we cannot travel so much, but Bible says you can send the word. Psalms 107 verse 20 says he sent his word and healed your sick families, friends, whoever he or she may be, and delivered him or her from destruction according to Psalms 107 verse 20। इस बात को परमेश्वर कहता है कि वचन में वो ताकत है, वो आत्मा और अंतर आत्मा के बीच में प्रवेश कर सकता है। यानी कि तुम अपना जुबान से परमेश्वर के पवित्र वचन को किसी भी हालात में भेज सकते हो, whether it be your family, if someone is sick, someone going through a hard time, there is a death in the family, you can send the living word of God. And Bible says the word will pierce even to the division of soul and spirit. दुनिया में कोई ताकत ऐसा नहीं बना है जो परमेश्वर के वचन को रोक सके, और वो पवित्र वचन को तुम भेज सकते हो आज। और जो लोग विश्वास में बढ़ते हैं वो परमेश्वर के वचन पर मनन करता है, और उन लोगों के जो गहराई है वो वचन की ओर बढ़ता है, वो वचन को समझता है। बाइबल कहता है आइज़ाया 55:11 में, so shall my word be that goes forth from my mouth, it shall not return to me void, it shall accomplish for what it's been sent for। बाइबल कहता है, ये भी कहता है कि धरती और आसमान टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन वापस कभी खाली नहीं आएगा। आप जहां से भी सुनते हो यह परमेश्वर के पवित्र वचन, अगर आज तुम इस पर मनन करते हो, यह वचन को तुम भेज सकते हो हर एक हालात पर, चाहे इंसान कितना दुखी है, चाहे कितना भी मुसीबत में है। यह जीवित वचन जो दो धार तलवार से भी ज्यादा चोक है, यह वचन उन्हें छुटकारा को देगा,
यह वचन तुम्हें छुटकारा को देगा। यह वचन, जीवित वचन तुम्हारे समस्याओं को हल करेगा। और यह वचन के ताकत जो है वो तुम्हारे ज़बान पर परमेश्वर ने दिया है। प्रभु ने कहा कि तुम्हारा ज़बान पर मैं मौत और जिंदगी का ताकत दिया है। इस वचन को जब तुम भेजते हो, एक मसीह भाई या बहन, एक मसीह व्यक्ति जो परमेश्वर को जानता है, अगर वो आज परमेश्वर इसके वचन को भेजे, वो पूरा होगा, बाइबल कहता है। क्योंकि अगर आप सृष्टि के रचना को देखते हो, जॉन 1:1 में प्रभु का वचन कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। बाइबल कहता है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड इज गॉड। रेवलेशन 19:13 में परमेश्वर का वचन कहता है, ये जो वचन है यही है प्रभु यीशु मसीह। ये जो वचन है यही है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह है। और इस वचन को तुम अपने हर एक जगह पर, हर एक जीवन के हर एक क्षेत्र में इस वचन को काम में ला सकते हो। हालेलुया। प्रेज द गुड लॉर्ड। बाइबल कहता है, जो इंसान परमेश्वर के वचन में रात दिन मनन करता है, जो इंसान परमेश्वर के वचन को अपने गले लगाता है, जो इंसान परमेश्वर के वचन के साथ साथ चलता है, जो इंसान के जीवन परमेश्वर के वचन के आधार पे बना है, बाइबल कहता है साम्स में चैप्टर 1 और वर्स 3 में कि वो उस पेड़ के समान होता। मैं पढ़ता हूं, अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा है, He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. बाइबल कहता है, जो इंसान का जीवन परमेश्वर के पवित्र वचन में बना है, प्यारे भाइयों बहनों, इसका यह मतलब नहीं है तुम अपने जिंदगी के हर एक काम छोड़कर और बाइबल के वचन लेकर बैठते हो। इसके मतलब यह है कि तुम्हें परमेश्वर का वचन तुम्हारे जुबान में है, तुम्हारे हृदय में है। यानी कि जब भी कोई समस्या उठता है, जब भी कोई हालात बिगड़ा होता है, उस हालात में, उस समस्या में, उस बीमारी में, उस रोग में तुम परमेश्वर के वचन से बात करते हो। तुम्हारा जुबान जब खुलता है तो वो परमेश्वर का वचन से तुम बात करते हो। You're addressing every situation, every problem with the word of God, because the word of God is living and powerful. बाइबल कहता है, जो व्यक्ति इसको इस्तेमाल करता है इस प्रकार से, वो व्यक्ति उस पेड़ के समान है जो पेड़ नाले के किनारे लगाया गया। आपको पता है, नाले के किनारे, नाले में बहुत से पानी होता है, और बाइबल कहता है जो पानी है, इफिशियंस 5:26 में कहता है कि परमेश्वर का जो वचन है वो पानी की तरह है। यानी कि वो पेड़, वो इंसान, उसके प्रार्थना, उसके लगन परमेश्वर के साथ में, उसके परमेश्वर के साथ साथ चलना, उसके वचन के आधार पे चलना, उसके जीवन इतना गहराई पर पहुंचता है कि वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा को छू लेता है। बाइबल कहता है वो पेड़ के जैसे जड़ जाकर पानी को छूता है, उस प्रकार वो व्यक्ति के जीवन परमेश्वर के पवित्र आत्मा को छूता है। हालेलुया। जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, जो अपना जीवन के सबसे खास समय प्रभु के नाम लेता है,
चाहे वो सुबह उठता है, रात में उठता है, जो भी समय, लेकिन पहला स्थान जो है वो परमेश्वर को देता है, उसको याद करता है, उसको याद करके सोता है और उसी को याद करके सुबह जगता है और उसके वचन के अनुसार चलता है। वो इंसान, बाइबल कहता है, उसके जो रूट्स है, जो जड़ है, उस पेड़ के समान जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा तक पहुंचता है, छूता है। जब वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा में छूता है, पवित्र आत्मा से भर जाता है, तुम जानते हो उसके जीवन में क्या सबसे पहला बदलाव आता है। गैलेशियंस 5:22 में बाइबल कहता है कि वो इंसान, वो प्रार्थना करने वाला इंसान, वो परमेश्वर के अनुग्रह से भरा इंसान, परमेश्वर के ग्रेस जो है उसके ऊपर ऐसे ढाका हुआ है, वो परमेश्वर में होकर, और प्रभु कहता है उसके लिए सबसे पहला जो गिफ्ट है, जो तोहफा है, दिस फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, जॉय एंड पीस। बाइबल कहता है वो इंसान को जब भी तुम देखोगे उसमें प्रेम है, वो प्रेम से भरा है वो इंसान। जब भी वो कोई बोली बोलेगा, प्रेम से उसके आवाज में तुम देखोगे, उसके बातचीत में प्रेम, उसके लेन देन में प्रेम, उसके मेल मिलाप करने में प्रेम, हर कदम में उसमें प्रेम नजर आएगा, क्योंकि वो प्यार से भरा है, क्योंकि वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा को छुआ है। और पवित्र आत्मा के जो फल है, जो वरदान है, वो उसके जीवन में दूर से दिखाई देगा। वो प्रेम से भरा हुआ इंसान होगा, उसके अंदर में एक खुशहाली होगा। जब भी कभी तुम उसको देखोगे, वो खुशी से भरा होगा, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होगा, एक हंसी होगा, एक खुशी होगा अंदर से। उसके बोली में तुम महसूस करोगे कि इंसान अंदर से खुश है। हालेलुया। वो इंसान अंदर से खुश है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरा है वो इंसान। हे विश्वासी, आप जहां से भी सुनते हो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का जो प्रेम को तुम आज अगर अपने जीवन में टेस्ट करना चाहते हो, तुम उस पवित्र आत्मा तक पहुंचो प्रार्थना के द्वारा, और परमेश्वर अपने प्रेम से तुम्हें भर देगा, तुम्हें सजा देगा अपने प्रेम से। तुम्हारा चाल चलन बदल जाएगा, तुम्हारा बातचीत, तुम्हारा रहन सहन, लोग देखकर कहेंगे कि तुझ में कुछ है जो हम में नहीं है, और वो है प्रभु यीशु का प्रेम। बाइबल कहता है तुम उस इंसान के समान हो जो समय से फल लाएगा, that brings forth its fruit in its season। जब तुम्हें जो कुछ की आवश्यकता है जीवन में, वो तुम्हें मिलेगा, तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि तुम्हारा अंदर में परमेश्वर के पवित्र आत्मा के काम को तुम देखोगे। बाइबल कहता है whose leave also shall not wither। इसके मतलब यह है कि तुम्हारे जीवन में इतना गंभीरता पूर्वक परमेश्वर के गवाही यानी कि टेस्टिमनी भरा रहेगा। जैसे एक हरा भरा पेड़ है जिसके पत्ते मुरझाते नहीं, वो हरियर रहता है, इसी प्रकार हर समय तुम्हारे पास में परमेश्वर का गवाही
तुम्हारे जबान पर रहेगा, क्योंकि तुम हर समय परमेश्वर के अद्भुत और आश्चर्य कामों को महसूस करोगे। अपने जीवन में तुम देखोगे कि परमेश्वर कौन सा काम को करता है। अपने बच्चों के जीवन में देखोगे, अपने मिनिस्ट्री में देखोगे, अपने रान पड़ोसी में देखोगे, अपने परिवार में देखोगे, अपने घर और घरानों में देखोगे, क्योंकि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है और तुम परमेश्वर के वचन में मनन करता रात दिन। और आज तुम्हारे जो पत्ते हैं वो मुरझाते नहीं, क्योंकि हर समय तुम्हारे पास टेस्टमनीज होता है। कोई 20 साल पीछे के गवाही लेकर तुम आज नहीं दौड़ता है, तुम आज नहीं चलता है वो पुराना टेस्टमनी को लेकर। एक नई टेस्टमनी हर समय, जैसे एक पेड़ पर नए पत्ता हर समय आता है, उसी प्रकार प्यारे दोस्तों, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में एक नया गवाही हर समय तुम देखोगे। हालेलुया, प्रेज द गुड लॉर्ड, बिकॉज यू सर्व a living God. Praise the good Lord. The Bible says, in whatever he does, the last part of verse 3, Psalms chapter 1, and whatever he does shall prosper. He need not to worry how things will play out. He knows for sure it will happen. Bible says whatever you make happen for others, God will make happen for you. क्योंकि प्रेम से भरा इंसान, परमेश्वर के वचन से भरा इंसान, वो विश्वासी हमेशा दूसरों के लिए अच्छाई को सोचता है, अच्छाई छोड़ और कुछ नहीं सोचता। बाइबल कहता है ऐसा इंसान अपना हाथ जहां पर लगाएगा, जो भी कार्य के लिए लगाएगा, जो भी काम में वो अपना कदम को बढ़ाएगा, बाइबल कहता है कि परमेश्वर अपने वचन में कहा है कि he shall prosper. The destiny of a blessed man, you will see it all over his life and his family, his ministry, his mission, his business, his work, his family. You will see it because the Lord has blessed him. प्यारे दोस्तों, आज इस समय मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के पवित्र वचन पर मनन करें। जो विश्वासी लोग हैं, वचन को सीखकर, सुनकर और वचन में अपना विश्वास को बढ़ाकर और वचन के द्वारा अपने जीवन के व्यतीत करें। आए हम सब प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन कहता है कि पुकार मुझे, मैं तुम्हारी सुनूंगा और ऐसी ऐसी गुड़ बातों को बताऊंगा जो तुम नहीं जानते। Call unto me and I'll answer you, show you great and mighty things that you do not know. Lord, this very moment, इस घड़ी परमेश्वर हम प्रार्थना करते, हर एक भाई बहन जो हमसे जुड़ते हैं आज, हर एक के जीवन में प्रभु आज एक बदलाव को ला, कि परमेश्वर तुम्हारा जो ताजा बहुमूल्य वचन है, उस वचन पर सीखने के लिए शुरू करे। प्रभु, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में वचन को इस्तेमाल करना शुरू करे, क्योंकि तेरा वचन जीवित है और प्रबल है। प्रभु, हम यही प्रार्थना करते कि तुम्हारा आशीष, तुम्हारी अनुग्रह, the grace of our Lord Jesus Christ be upon each and every one of you. In Jesus' name we pray and ask. And everybody said, Amen, amen, and amen. Thank you so much for tuning in. We hope that the word and the worship blessed your heart. Now, before we let you go, we'll say the declaration together. 2024 is my year of grace. I will accomplish God's plan and purposes for my life, and this year, not by might, not by power, but by His Spirit.
I speak grace, grace, the undeserved, unmerited, and unearned favor of God to every mountain and declare that you are becoming a plain before me. He who began a good work in me and through me will complete it until the day of Christ. In Jesus' name, amen. I hope you all have a blessed week ahead, and please don't forget to like, share, and subscribe on all our socials. Until then, stay blessed and stay safe.